Bismillahirrahmanirrahim. So this time we'll discuss the normal distribution. Sometimes we don't have the variable which is discrete. Rather, we have a variable which is continuous in nature. Means it can assume any value between an interval, right? Like for example, height, weight, right? Blood pressure or sugar concentration. So these are all the continuous variables, like cholesterol, triglycerides, right? So in general, normally we routinely use this terminology that the normal intervals for the human blood pressure is this, its range is this. Okay. So cholesterol normal interval is this, minimum to maximum, right? So for example, the systolic blood pressure is from 110 to 140, and its triglyceride is from 330 to 200 milligram per deciliter. So these values they determine that if our condition of a person is well maintained or balanced or not, and if not, then the treatment is done to avoid further complications, right? So what defines these normal intervals and how the normal range of any variable is defined? So basically, this is all defined because of our distribution, which is known as the normal distribution, right? So as you can see here that I have already told you that normal distribution is a continuous probability distribution because it caters all the continuous variables, right? There are some other examples like body temperature, heights of adult men, and heights of cholesterol level of adults. So when you collect data regarding these variables, right, from a population, and if you draw the histogram of these values, what you will notice that these graphs they follow a pattern. Okay, they follow a pattern which is a bell-shaped pattern, right? If you end up with drawing a bell-shaped histogram, then these variables they are called as approximately normally distributed variables, right? So there is an example that if a researcher selects a random sample of 100 adult women and they measure their heights, individual heights, if they are measured and if the histogram is constructed, so you can see, so the researcher gets a similar graph to the one which is shown in here, right? If the sample size is increased, let's say for example 100 to 1000, right? So what will happen? You may have some more वेरिएशन इन योर डेटा और आपकी जो क्लास इंटरवल्स हैं वो थोड़े से और नैरो हो जाएंगे और ग्राफ अभी भी जो है वो बेल शेप्ड ही बनेगा लाइक दिस, राइट? सो और सैंपल इंक्रीज करेंगे तो क्लास की विड्थ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, बट ये जो शेप है वो ये इसी तरह से मेंटेन रहेगी, right? So such variables which end up with this type of curve, they are called as the continuous variables or normally distributed variables, and they follow this distribution which is called as normal probability distribution. या उन variables की probability हम इस distribution के through calculate कर सकते हैं. तो अगर आपको ये जानना है कि कौन सा variable normal है या कौन सा variable normal नहीं है, तो the simplest way is that draw all the values you collected
in the form of histogram. If you end up with a bell-shaped or approximately bell-shaped structure, so it indicates that the data or your variable is following a normal distribution. ठीक है, और आपका जो डेटा है वो आपका जो वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गॉस नामी मैथमेटिशियन ने ड्राइव की थी इसकी इक्वेशन, और इसको बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ठीक है, बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वेरिएबल की कैसी होती है, वो कंटिन्यूअस होती है एंड इट्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि जो कर्व है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। राइट हैंड पर जितनी भी डेटा वैल्यूज हैं उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, half of the values should be on the right side of the curve and half of the values should be on the left side of the curve, and it results in a bell-shaped distribution of a variable. ठीक है, इसका एक मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हर डिस्ट्रीब्यूशन की एक इक्वेशन होती है, इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी इक्वेशन ये है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है मगर डिस्कस करना जरूरी था। तो यहाँ पर E अगेन इट्स अ कांस्टेंट व्हिच वैल्यू इज नोन, और ये पाई है, इसकी वैल्यू इज नोन 3.14। दिस इज द सिंबल ऑफ पॉपुलेशन मीन, ये यहाँ मेजर किया हुआ है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, जब भी कभी कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी खास बात क्या है कि ये तो एक बेल शेप्ड कर्व को रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडली इसका मीन यानी कि इसका एवरेज, इन दोनों वैल्यूज का, ये डिक्लाइनिंग वैल्यूज हैं, ये इंक्लाइनिंग वैल्यूज हैं, इनके जब मीन लेते हैं तो वो सेंटर में होता है बिल्कुल। ठीक है, और मीडियन जो है अगेन द मिडल वैल्यू होती है तो वो भी सेंटर में होती है। एंड मोड, इसका मोड यानी हाईएस्ट वैल्यू अगर इस पूरे ग्राफ पे देखें तो वो भी इसी पॉइंट पर होगी जिसपे पीक नजर आ रहा है आपको। तो ऑल द थ्री वैल्यूज दे आर एट द सेम पॉइंट। ठीक है, जो मिडिल पॉइंट पर तीनों वैल्यूज होती है, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। ये एक आइडियल सिचुएशन है किसी भी वेरिएबल की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, एक आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बट सम टाइम्स व्हाट हैपेंस कि कोई भी वेरिएबल परफेक्टली नॉर्मल नहीं होता। परफेक्टली मीन्स हम उसको ड्रॉ करें और वो परफेक्टली इस तरह हमें उसका ग्राफ मिल जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे वेरिएबल्स की जब हमारे पास वैल्यूज आती हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं तो हमें बेल शेप्ड स्ट्रक्चर तो मिलता है मगर वो इतना सिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, समटाइम्स जो मोस्टली कुछ वैल्यूज होती हैं, ज्यादातर वैल्यूज समटाइम वो लेफ्ट साइड पर होती है या समटाइम्स वो राइट साइड पर होती है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो भी हम कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहलाती है डेटा में स्क्यूनेस है या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ डेटा वैल्यूज फॉल्स टू द राइट और टू द लेफ्ट ऑफ द मीन। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आइडियल जो सिचुएशन है उसमें स्क्यूनेस नहीं होती है। आइडियल जो सिचुएशन है, आइडियल जो कर्व है, नॉर्मल कर्व, वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो भी हमने डिस्कस भी की। वो बेल शेप्ड होता है, मीन, मीडियन, मॉड दे आर इक्वल एंड दे आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिमॉडल होती है, इसमें एक ही मोड होता है, हाईएस्ट एक ही वैल्यू होती है। कर्व सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन, मतलब मीन से जो है वो हाफ वैल्यूज वो लेफ्ट पर और हाफ वैल्यूज राइट पर। ठीक है, which is equivalent to saying that its shape is the same on both sides.
ऑफ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, एक कर्व जो है वो कंटिन्यूस होता है, नो गैप्स और होल्स। ठीक है, और हर x की हर वैल्यू के लिए y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। x एक्सिस पे जो भी वैल्यू होती है y एक्सिस पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, और इसी की वजह से कोई गैप्स और कोई होल्स उसमें नहीं होते। ठीक है, no matter how far in either direction the curve extend, it never meets the x-axis, but it gets increasingly closer. ठीक है, अच्छा दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात, हाँ बड़ी इम्पोर्टेंट है इस नॉर्मल कर्व के हवाले से, जब भी कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं तो उनको प्रोबेबिलिटीज नहीं बोलते, उनको कहते हैं टोटल एरिया अंडर कर्व। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ही का नाम है। जब हम कर्व की सूरत में प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं तो हम बेसिकली टोटल एरिया अंडर द कर्व वो मेजर करते हैं, और हमें पता है कि जब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो टोटल एरिया अंडर द कर्व भी वो 1 होता है। अच्छा, आमतौर पर अगर मैं आपसे बात करूं हाइट की, तो हाइट का आप जब डेटा कलेक्ट करें, मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तानी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया हाइट का, कंटिन्यूस वेरिएबल है, आपने सबकी हाइट इंडिविजुअल हाइट्स नोट करके उसका मीन निकाल लिया, उसका स्टैंडर्ड निकाल लिया, उसका कर्व बना लिया। प्रोबेबिलिटीज कैसे मालूम करेंगे? इसी तरह वेट का करेंगे तो वेट का अपना एक डेटा होगा, उसका अपना एक मीन होगा, उसका अपना एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसी तरह टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो उसका अपना एक मीन होगा, उसका अपना एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो हर कंटिन्यूस वेरिएबल जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा उसका जो कर्व होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है, उसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, उसमें जो स्क्यूनेस है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जिससे हम हर वेरिएबल को टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं जी वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि आइडियली कोई भी जो वेरिएबल है वो आइडियली नॉर्मल नहीं होता, मतलब परफेक्टली नॉर्मल नहीं होता। हर वेरिएबल में कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उसका अपना मीन होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो हम हमारे पास कोई ऐसी स्टैंडर्ड वेरिएबल होना चाहिए जिससे हम तमाम कंटिन्यूस वेरिएबल्स को रिलेट कर सकें। तो उसके लिए जो हमारे पास वेरिएबल है वो कहलाता है जी वेरिएबल, और जी वेरिएबल एक थ्योरेटिकल वेरिएबल है, और इसकी जो है जो इसकी जो तमाम वैल्यूज हैं दे रिजल्ट इन आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मुझे बेल शेप्ड कर्व मैंने आपको बताया कि वो होता है, और बिल्कुल आइडियल सिचुएशन सिमेट्रिक कर्व होता है उसका, तो वो होता है बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल जी वेरिएबल। उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो practical applications में you would have to have a table of areas under the curve for each variable। ठीक है, तो यानी कहने का मकसद ये है कि जितने भी कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं उन सबका अलग मीन, उन सबका अलग स्टैंडर्ड है, तो उन सब के लिए आपको अलग अलग टेबल्स चाहिए होंगे। तो इस सोल्यूशन का हल निकालने के लिए स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया है कि दे हैव टू डेवलप दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली जो आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेफिनेटली उसके लिए इन्होंने एक वेरिएबल अज्यूम किया विच इज नोन एज जी वेरिएबल। और इस वेरिएबल की खास बात ये है इसका मीन जो है वो हमेशा 0 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमेशा 1 होता है। तो वंस दे हैव डेवलप्ड दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप किसी भी कंटिन्यूस वेरिएबल को इस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे हम निकाल सकते हैं? जितने भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स हैं उनको पहले हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है इनटू दिस स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल। ठीक है,
तो अगर आपको ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है या आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है तो डेफिनेटली हर वेरिएबल की अपनी अपनी वैल्यूज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफॉर्म योर नॉर्मल वेरिएबल, your variable of interest into this standard z value। ठीक है, क्योंकि z वैल्यू का हमारे पास पूरा टेबल भी है और वो टेबल जो है उस इक्वेशन से बनाया गया है जो मैंने भी आपको पीछे मेंशन किया। तो बेसिकली ये जो z वैल्यू है ये इसमें पहले आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड वंस यू हैव ट्रांसफॉर्म योर वेरिएबल वैल्यू इनटू दिस z वेरिएबल, नाउ यू हैव टेबल एंड यू हैव table that can easily help you in finding out the probabilities। ठीक है, अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है। ठीक है, ये वो वैल्यू है जिसको ट्रांसफॉर्म करना है आप। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और इसको पॉपुलेशन मीन से माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो जी वैल्यू होगी और वो अब आप टेबल यूज कर सकते हैं जिसको नॉर्मल टेबल कहते हैं, जी टेबल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप नॉर्मल जी टेबल को देखें तो नॉर्मल जी टेबल जो है उसकी वैल्यूज -3.4 से +3.4 तक वो वेरी करती हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में ये 3.9 तक भी गई है, 4 तक भी गई है, राइट, मगर मोस्टली 3.4 तक होती हैं और आपकी जो भी वैल्यूज आती हैं जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो इस रेंज में ही आती हैं। तो आप आ गई आपके पास 2.58 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और ये जी वैल्यू आपने ट्रांसफॉर्म की है। ठीक है, एक्स की वैल्यू को जी में ट्रांसफॉर्म किया तो ये वैल्यू आ गई 2.58। नाउ अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि ये वैल्यू टेबल में कैसे आप देखेंगे। ठीक है, सो इसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज मौजूद हैं। व्हाट यू विल लुक एट द जी कॉलम और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2.5 कहाँ है। ठीक है, सो हियर 2.5 इज देयर। ठीक है, बट द वैल्यू इज नॉट 2.5, इट्स 2.58। जो थर्ड डिजिट है बेसिकली वो आप यहाँ से देखेंगे, थर्ड डिजिट यहाँ से देखेंगे तो 2.58 विल लाई समवेयर हियर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है बेसिकली this is the value or of the probability that you are looking for, that is 0.99506। ठीक है, तो 2.5 from here and the third digit will be searched from here and this value will be taken as the probability or you can say the area under the curve। ठीक है, तो जो भी z वैल्यू आई है आपने पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है और उसका सेंटर में आपने ये 0 रखना है। ठीक है, तो जो भी z वैल्यू आई है अगर ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है तो अगर आप इसकी लेफ्ट साइड को मालूम करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये 1 पॉइंट मिसाल के तौर पर 1.5 वैल्यू है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल इफ इट इज 1.5। ठीक है, और आपसे पूछा है कि एरिया बिलो 1.5 मालूम करें। ठीक है, तो बेसिकली आप मालूम कर रहे हैं लेफ्ट ऑफ एनी z वैल्यू। ठीक है, बिलो 1.5 तो आपने क्या करना है, जिस एरिया को आप मालूम कर रहे हैं उसको आपने कलर कर देना है और जो भी वैल्यू आएगी इसकी 1.5 की इन द टेबल उसको आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, विद एरो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये आ रही है 0.7 लेट्स से तो यहाँ पर आप लिख देंगे 0.7। ठीक, अच्छा अब इसी तरह कोई नेगेटिव वैल्यू है मिसाल के तौर पर इट्स -1.5 और आपसे कोई कह रहा है कि एरिया बिलो -1.5 आप मालूम करें तो आप अगेन -1.5
की जो वैल्यू है उस पे टेबल पे जाके देखेंगे, और एरिया जो है वो बिलो 1.5 को यहाँ आपने कलर करना है, और ये जो भी उसकी जो वैल्यू है वो आप यहाँ इस तरह से लिख देंगे। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, जब भी कभी आप ये वैल्यूज बेसिकली, चाहे वो पॉजिटिव की वैल्यू हो चाहे वो नेगेटिव की वैल्यू हो, तो अगर आप जब भी कभी बिलो वैल्यू मालूम करेंगे तो इसका मतलब है आप उसकी लेफ्ट साइड को मालूम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एरिया बिलो दिस वैल्यू और एरिया बिलो दिस वैल्यू। ठीक है, तो इट विल लाई टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। अगर आप बात करें टू द राइट साइड ऑफ दी एनी जी वैल्यू, अगर आपको मालूम करनी है, यानी एरिया अबव एनी वैल्यू अगर आपको मालूम करना है, तो उस सूरत में आपने जी टेबल से वैल्यू देखनी है, और हमें पता है कि टोटल जो एरिया है वो 1 होता है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू मालूम करके उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये सारी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, यानी कि अबव के केसेस में आपको क्या करना है, एरिया बिलो पहले मालूम करना है और उसको 1 में से माइनस करना है। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि यू नीड टू फाइंड आउट दी वैल्यूज बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो अगेन आपने एक नॉर्मल कर्व बनाया है, पहले लोकेट कर लें कहाँ है पोजीशंस जी वैल्यूज की। मिसाल के तौर पर अगर आपको इन दोनों का मालूम करना है, अगर आपको इधर मालूम करना है या ये वाला मालूम करना है, तो हम दोनों वैल्यूज को देखते हैं एंड देन जो एरियाज है उनको सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हायर एरिया में से लोअर एरिया को हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे ये वाला केस है, हमें इन दो वैल्यूज के दरमियान का एरिया मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा एरिया है यानी कि दिस एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया पूरा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, और इस एरिया में से ये वाला एरिया जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सेंटर वाली। राइट, तो आपसे सवाल है फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द जी। ठीक है, अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कर्व बना लिया। ठीक है, कर्व बनाने के बाद आपने यहाँ मीन लोकेट कर लिया, क्योंकि अभी आपसे जी की बात करें, स्टैंडर्ड वेरिएबल उसकी बात करें, और यहाँ पे 0 लिख दिया क्योंकि आपको पता है सेंटर में जो भी पोजीशन है ये मीन की है, मीन सेंटर पॉइंट पर होता है वो 0 है। एंड आपसे कहा है ये 1.99 की वैल्यू है, और अब इसमें आपसे दो सवाल किए जा सकते थे। आपसे कहा जा सकता था कि आप या तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करें या आप ये सारा एरिया कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अब आपको चूंकि बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया या प्रोबेबिलिटी टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, सो बेसिकली आपने ये सारा एरिया कैलकुलेट करना है, दिस वन। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, वी आर लुकिंग फॉर द एरिया अंडर दी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो अब आपने क्या करना है, इस 1.99 की जो वैल्यू है इसको आपने कहाँ देखना है, इन द टेबल, क्यों इन द टेबल 0.9767। तो बेसिकली हमने इस एरिया को कलर किया, कलर करने का मतलब ये होता है कि हम इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। ठीक है, सो 90 इसको परसेंटेज में कर दिया है, 97.67% एरिया जो है इट्स लेस देन दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। इसी तरह टू द राइट वाली हम बात कर लेते हैं, यानी कि अबव जी वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगेन आपसे कहा है फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ जी, और आपको ये वैल्यू दी हुई है जी की। अगेन आपने सबसे पहला काम करना है, एक नॉर्मल टेबल बना लेना है, और उसमें आपको पता है सेंटर में मीन होगा हमेशा। ठीक है, उस पर ये वैल्यू लोकेट कर लें, ये वैल्यू आपको पता है 0 से ये इस साइड पर ही आएगी। अब आपसे दो बातें पूछी जा सकती थी, आपसे पूछा जा सकता था ये वाला एरिया, आपसे पूछा जा सकता था ये वाला एरिया, मगर ये आपसे पूछ रहे हैं टू द राइट।
ठीक है, सो राइट साइड वाले एरिया को आपको मालूम करना है। व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो आपने सिंपली इसको टेबल में देख लेना है। तो टेबल में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेकन है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है ये वाली, और हमें ये बात पता है, हमने एक्चुअली इस एरिया को माइनस किया है, तो ये वाला एरिया हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.87। अब ये सिचुएशन है, एक 2 पॉइंट से उनके दरमियान का एरिया हमें मालूम करना है। तो अगेन सबसे पहले आपने एक नॉर्मल कर्व बनाया, उस पे आपने मीन लोकेट किया, उस पे दोनों वैल्यूज लोकेट की, वन इज ऑन द राइट साइड, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड। इन दोनों के दरमियान का चूंकि रीजन आपको मालूम करना है, कितना एरिया है अंडर द कर्व, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी वैल्यू इनके दरमियान लाई करेगी। तो उस सूरत में आपने इस एरिया को हाईलाइट कर दिया है। ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि आपने ये एरिया मालूम करना है। ठीक है, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये वैल्यूज हैं, और अभी मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, हम बिलो दिस एरिया हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पूरे इस एरिया में से ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है, इसमें से इसको यहाँ से यहाँ तक वाले एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो ये एरिया हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, यू डोंट नीड टू सब्ट्रैक्ट जी वैल्यूज। आपने करना क्या है, जी वैल्यूज को जाके देखना है टेबल पर। ठीक है, और स्मॉलर एरिया में से सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एरिया फ्रॉम द लार्जर एरिया। ठीक है, अगर आप ये वैल्यूज देखेंगे तो एरिया फॉर दिस 1.68 इज 0.9535। ठीक है, ये 0.9535 है बिलो, ये सारा एरिया 0.9535 है, और ये वाला एरिया जो है, ये वाला बिलो दिस एरिया, ये 0.0853। जब आपने वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया है तो यू गेट दिस वैल्यू, क्योंकि ये आपकी इस एरिया की वैल्यू। ठीक है, सो ये 86.2% चांस है कि एनी वैल्यू विल लाई बिटवीन दिस रीजन, या ये जो एरिया है वो कवर कर रहा है 86.82% ऑफ द टोटल ग्राफ।